Alright, Assalamualaikum everyone and welcome to another video. तो आज की वीडियो में I will be sharing with you guys these 5 hostel hacks that I've learned in these 6 months that I've spent in hostel. Now disclaimer, अगर आपको पीछे कवों का शोर आए तो my apologies but my room is right in front of these huge trees जहाँ पर ढेर सारे कवे रहते हैं और उनका शोर annoying है but there's nothing that I can do about it. So without wasting too much time, let's get into the video. So tip number 1 is freezer, which means कि Robbins mythology को आप use करें as a cutting board. Well, I'm just kidding. That is not the hack. The hack is to basically cut your vegetables and store them in your freezer. तो ये hack मुझे कुछ टाइम बाद समझ आया था जब मैंने बहुत सारी सब्जियाँ गाल दी हुई थी. So usually my vegetables they kind of get, you can say, destroyed by bacteria and fungus in like a few weeks. मतलब 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं. और हॉस्टल में you're the only one who really needs to eat food. You don't have a family to feed. So basically अक्सर औकात ये आपसे ख़राब हो जाएगी. तो इस वजह से बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारे पैसे ज़ाया करने के बाद मुझे समझ आया कि whenever you buy vegetables, cut them into whatever shape or form that you want and then store them in these zipper freezer bags. So ये Ornex ने बिल्कुल भी नहीं की sponsor video, although उनको करनी चाहिए थी, but yes, I'm not promoting them. You can use any zipper freezer bags that you want. तो आप अपनी vegetables को इसके अंदर डालें और उसके बाद फ्रीज़र में डाल दें. और अगर आप चाहें तो आप इसको लेबल भी कर सकते हैं विद वट एवर सब्जी इट इज़, बट अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप पहचान ही लेंगे. खैर, तो ये आपको लास्ट करेंगी फॉर लाइक अ मंथ एट लीस्ट, बल्कि ज़्यादा करती हैं अकॉर्डिंग टू गूगल अराउंड अ ईयर, बट कीपिंग दैट असाइड कुछ महीने तो खा ही सकते हैं आप. ये 1 महीना तो सही. टिप नंबर 2 इज़ मील सेवर. तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके फ्रिज में कुछ ऐसा होता है जो आपके खाने का दिल नहीं होता, या हॉस्टल में ऐसा खाना होता है जो आपका खाने का दिल नहीं होता, और फूड बार्डर कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं, जाहिर सी बात है. तो इन दैट केस आई लाइक टू ईट दीज न्यूट्री लव बार्स. ये ग्रानुला बार्स हैं. आई लाइक दिस फ्लेवर. आई थिंक इट्स द चॉकलेट चिप फ्लेवर. एंड अगर आप चाहें तो आप इसके पीछे जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं. You can see it has like around 140 calories, which is good enough, at least for me. So this is my meal saver. Whenever I don't feel like having proper food, this is what I eat. The third tip is a key hook. तो आपके कमरे की चाबियाँ बहुत ही अहम चीज़ हैं और इसको एक ही में अगर आपने लूज़ कर लिया तो आपको 500 रुपये जुर्माना. इस वजह से I have this key hook in my room जो मैंने नहीं लगाया था, मेरे से पहले जो भी इस कमरे में रहता था उससे लगवाया था, बट आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट. whoever you are, thank you. So basically इसकी हुक पे मैं अपनी चाबियाँ लटकाती हूँ और in this way I don't ever lose them. And so yay. Tip number 4 is are magic hooks. So magic hooks are a complete life changer. मुझे इनके बारे में हॉस्टल आने से पहले नहीं पता होगा, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो. So जब मैं हॉस्टल में आई थी I was thinking, well, where am I going to drill the holes? How am I going to drill the holes? और ये जो पूरा चक्कर है स्क्रू ड्राइवर वाला, ये कैसे होगा? But then I discovered these magic hooks जो basically उनके पीछे एक sticker type material होता है. आप उसको उतारें and it will basically adhere to the wall very firmly or whatever surface that you're adhering it to. So इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें चीज़ें लटका सकते हैं. Like my bathrobe, I kind of put it on one of my magic hooks. Even अपनी clock मैंने magic hook पे लगाई हुई है. So you don't drill holes, you don't get fined by the hostel staff. इसके अलावा here's a bonus to this. use softboard pens. तो AKU के अंदर हमें softboard दिया गया है, तो softboard के ऊपर मैं अपनी पेन्स लगाकर उसके ऊपर भी अपने फ्रेम्स लगा देती होती हूँ. So that's another hack that you can use if you have a softboard. Tip number 5, the front. Well, let me actually rephrase it. The basically kill the distraction tip. Well, kill the distraction trip का मतलब ये कि क्या आपने कभी पढ़ते हुए फुल इंटेंस पढ़ाई कर रहे हैं, फुल माहौल बना हुआ है, और इस तरह पढ़ते हुए और अपने आप को प्रोडक्टिव फील करते हुए अचानक से आपका फ़ोन रिंग होता है, आपको आई है एक नोटिफिकेशन. जब ऐसा होता है तो आप अपना फ़ोन पकड़ते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, हो सकता है व्हाट्सएप हो, जो मर्ज़ी हो,
उसके बाद बिफोर यू नो इट यूर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ये साइकिल चलता रहता है। 2 hours later. और पता चलता है कि 2 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी आप अपने फ़ोन पे और जो आपने पढ़ाई करनी थी वो अधूरी रह गई है। तो इसका टिप ये है कि आप बेसिकली अपना फ़ोन पावर ऑफ करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल अपना एक दोस्त ढूंढें जो आपकी इस चीज़ में मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपना फ़ोन पावर ऑफ करके अपने दोस्त को देंगे और आपका दोस्त अपना फ़ोन पावर ऑफ करके आपको देगा, एंड यू गाइज विल एक्सचेंज द फोन्स and you will only return it to one another when you're done with your studying. इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ना आपको पता है उनके फ़ोन का पासवर्ड, ना उनको पता है आपके फ़ोन का पासवर्ड, so having each other's phones is pretty much useless, and this is how you can study in peace without your phone. and क्योंकि हॉस्टल का कमरा वैसे इतना छोटा होता है, उसको आप किधर छुपाएंगे, तो बेहतर है अपने इस तरह किसी दोस्त को पकड़ा दे फ़ोन और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें पढ़ के। अनफॉर्चुनेटली उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. So basically August is my birthday month, and if we can get to 2000 subscribers in August, then I promise a giveaway or a personal Q&A session with you guys. And yes, so share this video as much as you can, and I will see you next time with another video. Khuda Hafiz.